firstly, good to see you. How are you? I'm great. I'm आ, doing well. क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह हम देखते हैं आपके करियर की अगर मैं बात करूँ, you have tick all the boxes. Yeah, OTT, all the mediums. सबसे right. पहले मैं medium से ही शुरुआत करूँगा. How do you feel ticking all the boxes in the medium? It feels amazing because I'm working in all different languages and with different actors, different technicians. So it's a very great feeling, and I'm feeling so fortunate and so lucky that I'm able to work with so talented people. And tell us something about your debut in South. How Yeah. excited you were for that moment, and किस तरह से ये role आपको offer हुआ? It's a very deglamorized role. So I have auditioned for some Tamil film long back. So makers landed up seeing that audition और उनको वो अच्छा लगा. But they were still skeptical about casting me because जो role है वो बहुत deglamorized role था. लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया कोची for the look test and they made me full dark. और पूरा डार्क करने के बाद द आउटफिट एंड द फुल डिग्लैमर आई गॉट लिटरली स्केयर टू सी दैट बिकॉज मुझे लगा कि इतना गंदा मुझे दिखा रहे हैं व्हाट इज़ गोना बी आई वाज वेरी स्केयर्ड और जो मेरी टीम मेरे साथ गई थी उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं सो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई लेकिन उसके बाद व्हेन दे नरेटेड मी एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर I felt that it is very interesting and I should go for it because in all the scripts and all the characters which I have played, सुंदर तो आप हर जगह दिखते हो यार. This was the character where I got the chance to perform and where I got the chance to prove myself as an actor. So I didn't even give it a second thought and I chose that character. मालूम आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि जिस तरह आपने अभी जैसा जिक्र किया कि जो लुक को लेके Yeah. जब आपने आईने में देखा फर्स्ट टाइम तब आपको ऐसा कुछ कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो रेज्ड हुआ आपके माइंड में? बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि ये if it doesn't work then what will happen and what kind of roles I will get in future, is it going to be negative, it is going to be positive. So एक बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स थी लेकिन I just followed my instinct और मुझे ऐसा लगा मुझे ये करना चाहिए बिकॉज आफ्टर आई सेड येस टू द स्क्रिप्ट एंड दे एक्चुअली मेड मी लिव विद दोज पीपल हु एक्चुअली वर्क इन द फार्म्स the forest and those women वो सुबह 4 बजे उठ के खेतों में जाके that rubber tapping they do and then they eat together, they sit together, उनके छोटे छोटे घर हाथ से खाना. So that was the lifestyle they used to live. वो डंडा पकड़ के चलना. So I practiced that process for a week and I got into that character and it took me very long to get the body language right because वो मॉडर्नाइज नहीं लगना चाहिए. दैट वॉज वेरी डीग्लैमराइज्ड विलेज कैरेक्टर. तो उसमें अगर ज़रा सा भी कुछ फेक लगता तो आई वुडंट हैव गिवन प्रॉपर 100% टू द कैरेक्टर. बट आई रियली वर्कड ऑन इट एंड द टीम वॉज वेरी गुड जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड वेंट रियली वेल. जिस तरह अब हम देखते हैं एंटरटेनमेंट में जो लैंग्वेज बैरियर करके जो वर्ड पहले थोड़ा बहुत होता था जितना भी, बट अब भी जिस तरह लगातार मूवीज आई है, RRR हो गई या फिर KGF हो गई या फिर इतनी सारी मूवीज आती है अलग अलग सब्जेक्ट से, साउथ से हो गए या फिर तमिल से हो गई. हाउ डू यू सी नाउ द लैंग्वेज बैरियर इज गॉन नाउ? No, now there is like everything is coming pan India. Even Hindi actors are working in South actors are coming in Hindi. So it's all all working together. It's very positive, very nice, and now there is so much OTT content where South actors and Hindi actors are collaborating and they are working together. So right now I think good script, good performance is very important and working with the right people is very important because when you work with the right team obviously there is something you'll perform better. The way you perform you'll perform 100% better than you are. तो लैंग्वेज बैरियर तो है, आई नो इट इज़ देयर बिकॉज थोड़ा सा आपको वही स्क्रिप्ट में काम करना पड़ता है. यू कैन ओनली से योर डायलॉग्स विच दे गिव यू, यू कांट इम्प्रोवाइज. दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक. उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी ड्रॉबैक टू इट.
लैंग्वेज बैरियर आपके साथ हुआ कभी स्क्रिप्ट में क्या, या फिर वो लोग जब मिलके बैठते हैं तभी Yeah. ऐसा कभी लगा थोड़ा सा कि फील होता है बिकॉज दे इंटरेक्ट एंड दे डिस्कस द स्क्रिप्ट, दे ट्राई टू इम्प्रोवाइज, तो उसमें आई एम नॉट एबल टू टेक पार्ट, आई फील वेरी बैड अबाउट इट. I will definitely go and learn one language. I'm just trying to learn either Tamil or Telugu, any of the language, because it is very helpful when you know the language. It is very easy and you can perform 100% more better than what you are doing now. Yes. So I'll try my best to learn at least one language. मालूम करियर की शुरुआत जब आपने की थी तब इस तरह जो ये जो लैंग्वेज बैरियर हो गया या फिर Right. पैन इंडिया हो गया या फिर ओटीटी हो गया, इस तरह के जो ऑप्शंस है जो अवेलेबल नहीं थे जो शुरुआत में, जब आप पीछे मुड़ के जब देखते हो तब करियर की शुरुआत आपने जब की थी तो आपको क्या लगा कि मुझे किस तरह के रोल ऑफर होने चाहिए? किस तरह के रोल एक्चुअली जब भी मैं ऑडिशन देती थी, आई यूज टू ऑडिशन अ लॉट. पीपल यूज टू से यू ऑलवेज परफॉर्म लाइक अ किड, यू शुड ऑलवेज गो फॉर कॉलेज गोइंग कैरेक्टर्स, यू शुड ऑलवेज चूज वेरी यू नो यंग बबली काइंड ऑफ रोल्स. बट मुझे वैसे रोल अभी एक फिल्म में मिला है, इट्स OTT फिल्म जोरावर दी जैकलिन. इन दैट आई एम प्लेइंग अ कॉलेज गोइंग. उसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव प्लेड दैट कैरेक्टर इन एनी ऑफ द फिल्म इन साउथ. Very different character. In this, I'm playing a village girl. In Telugu, I'm playing a very girl next door, and she's also doing a fight sequence in the film. So, you know, it's not important that you go for any certain character. The look will change in every character, but you have to adapt the body language. So, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो पसंद था, I really wanted to do a character which Priyanka Chopra has done in Quantico or Mardani or a Wonder Woman. That kind of a role fascinates me a lot. So in future I would love to go for certain kind of script, a women centric film. शुरुआत थिएटर से की थी आपने. Yeah. अगर कुछ अगर बताना चाहो थिएटर के किस तरह के रोल आप थिएटर में करते थे? थिएटर में मुझे बहुत अलग अलग हमने किरदार निभाए हैं. जैसे कि एक प्ले था हमारा आधे अधूरे, उसमें मैं बिन्नी का कैरेक्टर कर रही थी, जो एक डरी सहमी हुई सी लड़की है. पूरे प्ले में वो डरी हुई सी है. तो उसके अलावा एक प्ले था जो मैंने किया था, वेनिस का सौदागर, मर्चेंट ऑफ वेनिस यू कॉल इन इंग्लिश. तो उसमें ऑल्सो आई एम प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. सो I had a good you know experience of theater, like how you perform in front of real audience. It gives you another high and another level of energy, and plus it gives you a very good confidence when you perform in front of camera, because then you don't have any boundaries. And theater actors का ये फ़ायदा होता है कि they can easily learn their dialogues. Yes. So it's very helpful. Yeah. काफी सारे मैं थिएटर आर्टिस्ट को देखता हूँ जो अपने हीरो या फिर हीरोइन या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म वो जो होते हैं एक जो भी रोल मिला, काफी रोल को हम बोलते ना मॉडर्न एक्टिंग करना चाहते हैं या फिर वो रोल में घुस जाते हैं. इस तरह की एक्टिंग आप पसंद करते हो या फिर कोई ऐसा रोल जो आपको करने की काफी इच्छा हो? हाँ, क्योंकि देखिए कोई भी आपको कैरेक्टर मिलता है, आपको उसकी डीप स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसकी डीप स्टडी नहीं करोगे वो आपकी बॉडी में नहीं आएगा. तो मैं अपनी पर्सनल लेवल पे प्रिपरेशन करती हूँ. अगर मुझे मान लो मुझे कोई कैरेक्टर मिला है तो मैं उस कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी फिल्म्स देखती हूँ और बहुत सारा कंटेंट देखती हूँ, बिकॉज जितना हम देखते हैं उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उतना ही हम परफॉर्म कर पाते हैं ऑन स्क्रीन. सो जितना द मोर यू सी द मोर यू लर्न एंड मोर यू कैन अडेप्ट इनसाइड यू. So I try to watch a lot of content related to that character in my preparation, and it really helps me. Yes. मालूम कभी आपने सोचा है कि रियलिटी शो में जाना चाहिए आपको, या फिर कभी ऑफर तो आए रहेंगे बिग बॉस के, तो आप कभी गए नहीं हो उस ऑफर को, काफी बार ठुकराया, मुझे काफी पता है उस बारे में. अगर कुछ बताना चाहोगे उस ऑफर को ठुकराने का कारण क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी शोज भी बहुत अच्छा एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो सही वक्त नहीं है मेरे लिए. अभी मुझे अच्छी फिल्म्स करनी है, बहुत सारा काम करना है
और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा काम करूँ, और हाँ हो सकता है इन फ्यूचर इफ़ आई रियली वांट मैं ज़रूर रियलिटी शो भी करूँगी। और मुझे डांस बहुत पसंद है, अगर मुझे डांस का कोई अच्छा रियलिटी शो मिला आई वुड लव टू डू दैट। पर अगर आप सच बताएं, अब तक कितनी बार बिग बॉस का कॉल आया आपको बिग बॉस में जाने I के लिए? think 2 to 3 times I have been offered Big Boss, but I don't think I'm ready for it now. Maybe in future I would love to do that. Okay, apart from that, when I came your house, the best thing I saw about the books which I told you, Yeah. किताब पढ़ना कितना पसंद है आपको? बहुत पसंद है किताबें तो। मुझे ऐसा लगता है मेरी फेवरेट चीज़ है। और फेवरेट जब मेरे पास कई जगह जब मैं शूट करती हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, तो किताबें जो होती हैं वो आपका एक सहारा होता है। बहुत बार ऐसी लोकेशन पे मैंने शूट किया है जहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो मुझे बहुत टाइम मिला किताबें पढ़ने का। और वैसे भी मुझे शायरी करना पसंद है, और शायरी की किताबें पढ़ना पसंद है। शायरी सुनना और सुनाना बहुत लोगों को पसंद है, तो आई कीप डूइंग दैट। Which is the three book that you always carry with yourself? Any three books? एक तो फिक्शन, एक कोई भी सेल्फ हेल्प बुक, और तीसरी पोइट्री। Poetry. Okay. और अगर तीन बुक अगर कोई जो व्यूअर्स है उनको अगर सजेस्ट करना हो, which is the three book would you like to suggest Okay. to keep yourself motivated? Okay, one for self-help, The Power of Now, because it really changes your life perspective. जो आपको आज में जीना चाहिए, it will teach you how to live in the moment. Power of Now. And for fiction, I would love to suggest Sydney Sheldon की Tell Me Your Dreams. It's a beautiful script, and not script for I say it as a script. It's a beautiful book and beautiful novel, and when you read it now you can see characters in front of your eyes. It is such a detailing Sydney Sheldon has written in that. And third, I would suggest everyone who is